the big story, the protests that are taking place not just in the national capital but across the country. It is turning out to be a pan-India protest. Here are visuals from New Delhi, Hyderabad, Jammu and Kolkata. And these protests are about the atrocities that are being committed on Hindus in Bangladesh. Hindu groups have taken to the streets across India demanding justice over the lynching of a Hindu man in Dhaka. From Delhi to Jammu, Kolkata and Hyderabad, protesters are holding demonstrations expressing outrage over the killing and calling for accountability. The protests are over the death of Deepu Chandra Das, who was allegedly tied to a tree and burned, sparking nationwide anger. Protesters say the outrage reflects a pan-India mobilization by Hindu groups seeking justice for another Hindu killed in Bangladesh and urging action over attacks on minorities across the border. A major protest has erupted outside the Bangladesh High Commission in the national capital as well, which was led by BHP and Bajrang Dal. Here are the visuals right on your screen. See, now we're at the second barricading that had been set up. Lots of people who have stood on top of the barricade as well. It's fallen currently and protesters have stood up upon it. There were police officials who were trying to push back all the protesters so that the entire event here could be carried out in a quieter fashion. It's supposed to be a solidarity, a turn-up of solidarity, a turn-up of outrage, yes. But the Delhi police and the paramilitary forces are also trying to ensure that the protesters are restricted to this very barricade as well. On your screens also, multiple posters over there as well of how there will be how Indians and Hindus in India will not tolerate any atrocity that is meted out in Bangladesh. These are the banners that people are also carrying. We'll also get you a word in, but there are more, in fact, people coming here. There's also a lot of chaos here with the barricades as well. Protesters are trying to remove the barricades to a safer distance. The barricade completely undone by the protesters here. They're trying to move it so that other people do not get hurt and that the way towards the High Commission is cleared as well. Remember, 6 to 7 layers of barricades have been set up by the Delhi police, by the paramilitary forces in order to create a safe distance between the protesters as well as the Bangladesh High Commission. ये बैरिकेड क्रॉस नहीं करा, ये कार्यकर्ताओं में, हिंदू युवाओं में, हिंदुओं के अंदर एक आक्रोश है. वो आक्रोश कहीं ना कहीं तो फूटेगा. ये लोग बांग्लादेश नहीं जा सकते, पर जो लोग बांग्लादेश जा सकते हैं, हिफाजत कर सकते हैं सरहदों की, हिंदुओं की, उनके लिए ये शोर है कि कम से कम तुम तो जाग जाओ, तुम तो हिंदुओं की रक्षा कर लो. इसलिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है. So the protests have spilled out onto the streets now. Now, a Bangladesh actress has made some serious allegations, flagging an anti-India agenda. Rokeya Prachi, a Bangladeshi actress, has claimed that the interim government in Bangladesh is stirring hatred against India. She alleges this is a power play to appease fundamentalist elements and claims that agendas backed by Pakistan and Turkey are being supported, triggering sharp reactions. So while the actor Rokeya Prachi, Bangladeshi actor, spoke about rising anti-India sentiment and also linked the violence to support for fundamentalist elements from Pakistan, Congress MP Digvijay Singh has a different theory altogether. While condemning the violence, he claimed it was a reaction to alleged atrocities in India and argued that similar communal elements or extremists operate in India as well. बांग्लादेश में जब से इस प्रकार का जो आंदोलन होकर सरकार बदली है, वहाँ वो सारे तत्व हैं जो कि धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं, जिनका विरोध शेख हसीना करती थी, जिनका विरोध शेख मुजीब साहब ने किया था. ये जो हालात हमारे देश में हैं, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहाँ पर उस प्रकार का हो रहा है. Now the BJP has launched a sharp attack on Congress MP Digvijay Singh's remarks on Bangladesh. The BJP alleges that Digvijay Singh had earlier also given a clean chit to Kasab and claims that attacks on Hindus in Bangladesh are being normalized. The party has accused Congress of justifying attacks on Hindus, alleging that such statements are being made for appeasement. बांग्लादेश में हम जो हिंदू विरोधी
एक इस्लामिस्ट और बहुत ही खतरनाक फोर्सेस को देख रहे हैं, उसको भी जायज ठहराने का काम, उसको भी लेजिटिमाइज करने का काम, उसको भी नॉर्मलाइज करने का काम आज कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति में कर रही है। कांग्रेस पार्टी बताए ना कि जब सीए कानून लाया गया तो इस प्रकार से प्रताड़ित होने वाले बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में जो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय से भाई बहन है, उनके लिए ही तो लाया गया था। उसका विरोध किसने किया? So is this justification of the violence, the atrocities committed on Hindus in Bangladesh? Let's open this up and go across to our guests. We have Dr. Kaushal Kant Mishra, spokesperson of the Bharatiya Janata Party, joining us. We also have Shadab Sams, chairperson of Waqf Board Uttarakhand, and Dr. Akashdeep Muni, political analyst. Dr. Muni, my first question is to you. Why is there an urge every time there is a protest in Nepal or Bangladesh to link it to India and say ki yahan bhi ho sakta hai? And this time around, the question is Digvijay Singh trying to justify what happened in Bangladesh when he draws a parallel and says isi tarah ka reaction yahan par bhi ho raha hai? Swati ji, Digvijay Singh is right when he says that. You see what happened on 19 December when Ram Narayan, a 31-year-old Dalit migrant worker from Chhattisgarh, was lynched to death by a mob in Valar, Kerala. And why this is happening, we need to understand. The hate mongers in Bangladesh are equal to the hate mongers in India also. Remember Nitish Rane, the BJP MLA from Maharashtra, who said that we'll kill them one by one, referring to all Bangladeshi Muslims. He said that to protect our religion, we can pick up swords. Once we get to on the field, no one will be able to save you. We'll kill you all. I'm quoting him. Remember Mithun Chakrabarti, who said in front of Honorable Amit Shah that we will be cut you down and throw your corpses at the lands, not in the river. This is referring to the Bangladeshi Muslims. Now, if you are, if you are pointing out statements, is it going to be another round of statements versus statements, or will somebody call out this urge of constantly bringing India into picture? Or is one hoping that such a situation arises in India as well? I'll tell you, Swati ji, it is very unfortunate on the part of our nation that we are worried about, we surely should be worried, but we are more worried about a Bangladeshi Hindu who has been killed, lynched in Bangladesh by Muslims. Why not? Imran Masood says Priyanka Gandhi को प्रधानमंत्री बना दो, सारे हिंदुओं को वहां से लेकर आके यहाँ बसा भी देंगी. The Congress party is more worried, Mr. Muni. अरे भाई हम तो पूछिए आप इमरान मसूद से क्यों इतनी चिंता हो रही है कि प्रियंका को प्रधानमंत्री बनाने चले और वो ले आएंगी सारे हिंदुओं को भारत में और बसा देंगी. मैं बता रहा हूँ, हिंदू जब भारत का हिंदू मरता है और आरएसएस वाले उसको मारते हैं, 4 आरएसएस वाले हैं जिन्होंने इस राम नारायण बघेल को मारा है. वो दलित माइग्रेंट वर्कर था, उसका वीडियो चला के देखिए कि ना कि चला है, खूब चला है, खूब वो वीडियो चला है, खूब चला है वो वीडियो. और इसलिए नहीं चला है, और इसलिए नहीं चला है कि इसीलिए नहीं चला है कि किसी के ऊपर ब्लेम डाला जा सके. जो भी रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. बट दिस सेंटिमेंट इज समथिंग दैट वी नीड टू कंडेम. When you equate it to what is happening in India, में भी तो हो रहा है. You're diluting it, you're justifying it, and perhaps you should give this suggestion, this advice to Imran Masood कि आप इतनी चिंता मत करिए और आप भी फिर हिंदू बांग्लादेशियों पे सरकार को मत बोलिए कि कोई एक्शन ले. डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, आकाशदीप मुनि सिंह, केरला में लिंचिंग हुई, आरएसएस को जिम्मेदार वो ठहरा रहे, कह रहे कि ये तो पकड़े गए हैं लोग और उसके बाद आपका ये प्रोपेगेंडा रहा है. स्वाति, मुझे लगता है आकाश मुनि थोड़ी देर और बोलते रहे तो अपने आप को और कांग्रेस दोनों को इसी तरह से एक्सपोज करेंगे. उन्होंने कहां से अपनी बात को शुरू किया और कहां पे ले जाके खत्म किया. वो बांग्लादेश के राइट को, बांग्लादेश में होने वाली हिंदुओं के खिलाफ घटनाओं को एक तरह से प्रोटेक्शन शील्ड दे रहे हैं. ये कुछ नहीं है स्वाति जी, ये सब पॉलिटिकल वल्चर्स हैं. बांग्लादेश में एक बैठा हुआ है, दूसरा हमारे यहाँ इंडी गठबंधन वाले बैठे हुए हैं. ये सब पॉलिटिकल वल्चर है. इन्हें अपना वोट बैंक नजर आ रहा है और कुछ नजर नहीं आ रहा. आप बताइए, ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदू की हम चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे मुनी साहब, पता है आपको पूरी दुनिया में
हिंदुओं के लिए कोई देश नहीं है, केवल हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जो हिंदू मेजॉरिटी देश है। उसके अलावा दुनिया में कोई भी एक देश ऐसा नहीं जो हिंदुओं के लिए है। तो आप ये बताइए, अगर हिंदू मारा जाएगा पूरे विश्व में कहीं पे, तो जाएगा कहां? 1% से कम इजरायली हैं, ज्यूज हैं, उनके लिए एक देश बना हुआ है, पर 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब ग्लोबल पॉपुलेशन के 3rd रैंकिंग पे आते हैं हम लोग। हमारे लिए एक देश नहीं है, और आप कह रहे हो हिंदुस्तान हिंदुओं की चिंता न करे। गजब बात लाते हो यार, कभी तो राजनीति से ऊपर। I would like to come back to you with a separate question. वोट बैंक को सेटिस्फाई करना चाहोगे? ये जो अभी बात आपने कही, यही रीजन था क्या? Was this the reason behind the objection and the opposition to CAA? उस पर मैं आऊंगी आपके पास, बट लेट मी गो अक्रॉस टू शादाब साहब। शादाब साहब, दिग्विजय सिंह कहते हैं कि कम्युनल एलिमेंट्स यहां पर भी हैं, एक्सट्रीमिस्ट यहां पर भी, ठीक है, वो कंडेम कर रहे हैं, जो हुआ वो गलत हुआ बांग्लादेश में, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा सेंटिमेंट तो भारत में भी है। स्वाति, आज मैं शर्मसार हूं। आज मेरा दिल रो रहा है, और रो रहा है उस इंसानियत के लिए, क्योंकि मैं भी एक मुसलमान हूं, और मैं ये कह सकता हूं कि जिस मोहम्मद के इस्लाम को मैं मानता हूं, जिस अल्लाह के इस्लाम को मैं मानता हूं, उसमें इस तरह की बर्बरता की कोई गुंजाइश नहीं है। और मैं और शर्मिंदा हो जाता हूं जब मुझे पता चलता है कि एक अल्पसंख्यक को, एक हिंदू भाई को मार दिया जाता है, और उस तरह से मारा जाता है। वो नरसंहार है। इस नरसंहार के लिए मैं ये कह सकता हूं कि कोई शब्द नहीं है। आज जो आकाश मुनि अपनी स्टेटमेंट रख रहे हैं, ये आरोप प्रत्यारोपी राजनीति मत कीजिए। आज इंसानियत, पूरी दुनिया देख रही है कि बांग्लादेश में इंसानियत शर्मसार हो रही है। पाकिस्तान का घिनौना पंजा, वो जमाते इस्लामी की नापाक हरकत, जिसने हमारे दोस्त को, जिसे हम अपना समझते थे, बांग्लादेश उसे दुश्मन बना दिया, उसे इतना गंदा बना दिया कि हम सोच भी नहीं सकते। आज इंसानियत रो रही है, हमारे दिल, हम अपने आप में समझ नहीं आ रहा है, रिएक्शन दे तो कैसे दे, कहां जाके मुंह छुपाए। तो करने वाले इस्लाम के नाम पर ये घिनौना हरकत कर रहे हैं। मुनी, अरे इस्लाम वो मुनी था, जी को भी आने दीजिए, ठीक है। अलाउ मिस्टर मुनी टू कम इन। सो दोज हु आर बेस्ड इन बांग्लादेश, those who know what's happening in Bangladesh are saying this is an anti-India sentiment which is being stirred. कि ये पाकिस्तान का एजेंडा, या इसमें कितना तथ्य वही लोग बता पाएंगे डॉक्टर मुनी, बट देयर आर सच रिपोर्ट्स एंड थियरीज कमिंग टू फोर। अमिस्ट ऑल दिस, कांग्रेस के नेता को लगता है कि यहाँ पे भी तो ऐसा ही हो रहा है। एंड व्हेन यू से कि हमें बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता करने की क्या जरूरत है, यही मानसिकता थी क्या जो आपने सीए का विरोध किया था? स्वाति जी, अब 2:1 है, तो इससे मुझे उतना ही समय देना है। मैं आपको पूरा समय दे रही हूँ, एटलीस्ट यू कैन नॉट कंप्लेन ऑन दैट फ्रंट। पूरा समय मैं आपको दे रही हूँ। हाँ, पहली बात कि मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि एक हिंदू अगर बांग्लादेश में मारा जाता है, जो बांग्लादेशी हिंदू है, वो सही है, वो गलत है। इंडिया का फॉरेन अफेयर्स को, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को उसको लेके जाना चाहिए बांग्लादेश, और उसको रोकना चाहिए, डिप्लोमेसी। अगर वो रोक नहीं पा रहे, तो ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की फेलियर है, जो यहाँ पे कौशल कांत मिश्रा रिप्रेजेंट करते हैं जिस पार्टी को, वो बताएंगे। दूसरी बात, मैं एक और चीज बोलता हूं कि ना, कि वो हम बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए चिंतित हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, पूरे देश भर को होना चाहिए। पर मैं ये बोलता हूं कि ना, जो हिंदू 19 दिसंबर को मारा गया, और जिनको आरएसएस वालों ने मारा बांग्लादेशी सोच के, उनकी चिंता क्यों नहीं करते? कौशल बिल्कुल करनी चाहिए। किसी की भी जान उतनी ही कीमती है। किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी कास्ट, झूठ बोल रहे हैं, किसी भी कास्ट का, किसी भी कम्युनिटी का कोई हो, उसकी जान क्यों जानी चाहिए? मॉब लिंचिंग क्यों होनी चाहिए किसी की भी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडेंटिटी, देयर रिलीजन एंड देयर कास्ट? बट जिस तरह से आप पलटे हैं डॉक्टर मुनी, आपको शुरू इसी से करना चाहिए था कि फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। आपको शुरू इसी से करना चाहिए था। आप ये कह गए कि भैया क्यों आपको चिंता सता रही है, फिर आपके पार्टी के लोग तो प्रियंका गांधी को सिर्फ इसीलिए प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं बिकॉज दे बिलीव शी कैन ब्रिंग बैक ऑल द हिंदूज एंड गेट देम सेटल्ड इन इंडिया। बट कौशल कांत मिश्रा, प्लीज रिस्पॉन्स। आपका दिल राम नारायण के लिए नहीं धड़कता, आपको केवल बांग्लादेश का हिंदू क्यों नजर आता है? स्वाति, आपको ये समझना पड़ेगा, जिस तरीके से ऋषि भाई मुनीर साहब बोल रहे थे, मुझे ये बताइए कि देश में बहुत जगह प्रदर्शन हो रहा है, कांग्रेस ने एक भी प्रदर्शन किया बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए? एक भी, कहीं नहीं। आपके पास एनएसयूआई है, क्या उसने कोई प्रदर्शन किया? एक भी नहीं। आपकी कांग्रेस की सो कॉल्ड बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, क्या किसी कांग्रेस ने यह डिमांड की कि वहां पर नहीं होना? कुछ नहीं करते। आप केवल पॉलिटिक्स करने के लिए बैठे हैं। आज बांग्लादेश कौन है? क्या बांग्लादेश हमारे वृहद भारत का जो हिस्सा है? बनाने वाले कौन थे? हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा जी बनाने वाली थी।
हम छोर से कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने बांग्लादेश को बनाया, और मुजीबुर रहमान जिन्होंने संस्थापक थे जो बांग्लादेश के, उनके घर को ये कट्टरपंथी गिरा रहे हैं, ये आतंकवादी गिरा रहे हैं, और उनके बेसिस पे आज की सरकार वहां भी अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रही है। वहां के लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का फार्मूला और टर्की का फार्मूला चल के वहां आ रहा है, और आप यहां पर बैठ करके यहां पर सेकुलरिज्म और कम्युनिज्म पढ़ा रहे हैं। अरे कभी तो राजनीति से ऊपर उठ जाओ यार। शादाब Shams also wants to come in. कभी तो हिंदुओं की बात करो, कभी तो बहुसंख्यकों की बात करो। ओके, डॉक्टर मिश्रा, शादाब शम्स भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, प्लीज गो अहेड। स्वाति, मैं बिल्कुल क्लियर हूं, आज हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं। इंसानियत मरी है, इंसानियत का कत्ल हुआ है, पूरी दुनिया को एक साथ खड़ा होना चाहिए। और मैं कह रहा हूं ये वक्त आ गया है, मैं बहुत ईमानदारी से, जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, अब अगर हम नहीं बोले, अब भारत का एक एक व्यक्ति अगर खड़ा नहीं हुआ, तो मुझे लगता है आने वाला घर हमारा होगा। बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। ये जो लिंचिंग हुआ है, ये जो जस्टिस हुआ है, मॉब जस्टिस को क्या आप जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या कहीं भी भीड़ तंत्र खड़ा हो जाए, किसी की हत्या कर दे? और मैं ये कह रहा हूं, जिस नबी को मैं मानता हूं, मोहम्मद साहब, उनके ऊपर ताइफ में पत्थर मारे गए, इतने पत्थर मारे कि उनके खून से जूतियां तर हो गई, और उन्होंने बोले ताइफ सदा तू सलामत रहे, शायद औलाद तेरी मुसलमान बने। अगर जुल्म भी आपके ऊपर कोई कर रहा है, उसका भी आप रिप्लाई जुल्म से नहीं दे सकते। ये है इस्लाम। लेकिन मैं तो आज ये बोलना चाहता हूँ कि कौशल कांत जी जो इतने बोल रहे हैं कि ना कि लिंच मॉब्स को क्या अगेंस्ट में बात करनी चाहिए, मैं आज ये बोल रहा हूँ कि ना कि नीतीश राणे जो उनके पार्टी के हैं, उन्होंने क्या किया जब ये नीतीश राणे जी ने बोला था ना कि वी विल किल देम वन बाय वन, दे आर पार्ट ऑफ दिस लिंच मॉब। These Nitish Rane, this Mithun Chakraborty, and this Kaushal Kant Mishra, and this Muslim Bhai, these are all part of this lynch mob. देखिए, आप इसको बांग्लादेश से आप डोमेस्टिक फ्रंट पर ले आए, and if it is statement versus statement, you also need to condemn what the TMC नेता said when he said वक्फ के लिए हम लड़ेंगे, नहीं मिला हक तो हम जोंगी बन जाएंगे, मिलिटेंट बन जाएंगे। बट allies से ऐसे स्टेटमेंट आए तो कांग्रेस पार्टी चुप हो जाती। That's where the hypocrisy and selectivity lies. और अगर ये hypocrisy selectivity भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो we need to call out that as well. Gentlemen, thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए।